Good afternoon, students. Today we are going to start with the new chapter, volume and surface area of solid figures. So up till 9th standard आप लोगों को याद है आपने किया हुआ है, ठीक है, cubes, cuboids and all those. On this year we are going to start with cylinder, then hollow cylinder. We are going to deal with the cones and we are going to deal with the spheres and hemisphere. So as you can see the formula is there in front of you. Let us start with the formulas और देखते हैं आप लोगों को कितना आता है ये. चलिए let's start. So किसको कितना याद है पहले हम वो रिकॉल करते हैं. You know this figure? Number one, it is called a cuboid. Now in a cuboid we have what? Yes, that's right. In a cuboid, we have the length, the breadth, and the height as the three, dimensions over here. So, what is the curved surface area or the lateral surface area? Wherever there is no curved surface area, we have lateral area. What is the difference between a curved area and a lateral area? Let us see into that. So, when I say we have got a circle, so we have a curved area, and whenever we have a plane, so we have got this area. This area is known as lateral area. So lateral area मतलब flat area होगा और curved area मतलब ऐसा गोल घुमा हुआ वाला curve में होगा. Okay, so this is the basic difference between the two. Okay, now let me erase this. Yup. Yes. Now in case of a cuboid, so a cuboid we know we have the dimensions for the cuboid, the length and the breadth and the height. Yeah, if you remember this, right? So इसमें हमारे पास में क्या क्या चीज़ें आ जाती है. एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है और एक हाइट होता है ना. सो लेंथ ब्रेथ और हाइट के काउंटिंग में अगर हम चलें तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है मीन्स एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी हम उसको कह सकते हैं. तो देखो तुम्हारे घर की दीवारों को देख लो, ये एक हो गया, ये एक इधर का हो गया, वैसे ही एक इस साइड भी होगा, ना, या और एक वैसा ही पीछे भी होगा आपका. सो इन द सेम वे when I make it like this, तो हमारे पास पीछे भी इसके एरियाज हो जाते हैं. So we have lateral surface area as 2LB, sorry, LH plus BH. So I can take like 2 common over there और 2 common निकाल लेंगे तो याद है ना तुमको, H भी आ जाएगा साथ में बाहर, तो L plus B. So 2H into L plus B we can say like that. हाँ, और तुमको मालूम है 2L plus B क्या होता है? 2L plus B is the perimeter. So someone can even write this formula as perimeter into height. Okay, ऐसे भी चल सकता है. Now plane surface area, that means the area of all the surfaces. So now they are taking the plane. Okay, the top face and the bottom face. अभी देखो top face और bottom face को हम लोग ले लेते हैं. Top face मतलब ये वाला, okay, and bottom face मतलब ये वाला. सो टॉप फेस एंड बॉटम फेस भी हमारा यहाँ पे हम एरिया में ले सकते हैं. सो टॉप फेस और बॉटम फेस जब हम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ये है लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, टू लेंथ प्लस ब्रेथ, और टोटल सरफेस एरिया मतलब सब ले लो. सो 2LB BH प्लस HL. वॉल्यूम एज यू नो L इंटू बी इंटू एच, और इसमें ये सारा लेंथ ब्रेथ और हाइट ये सभी कुछ ए हो जाता है अगर हम बात करते हैं क्यूब की. So in case of a cube, we have all this as A. So all the dimensions, length, breadth और height सभी A है आपका. तो इधर बनेगा 4A स्क्वायर, 4 वॉल का एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर. वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम विल बी A क्यूब. ओके, एंड दिस इज लाइक अगर हमको टॉप एंड बॉटम चाहिए, so this is the top and this is like the bottom. So top and bottom आएगा 2A स्क्वायर. Okay, fine. This has not been given in your textbook, but you can consider this as well. ये भी पता हो तो अच्छा है. चलिए अब हम आगे जाते हैं. Now, our chapter starts from here. Cylinder की बात करो. So cylinder में हम देखते हैं this is a right cylinder. Right cylinder का मतलब वो diameter और height के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा. Then we call it as a right cylinder. तो ये right cylinder बन गया हमारा. ठीक है. आजा. So इस right cylinder के अंदर अगर हम बात करते हैं,
तो एक रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से लेके इधर तक, ये जो डिस्टेंस आएगा विल कॉल दिस एज रेडियस r। और ये जो है ये इसका परपेंडिकुलर हाइट है, सो इसको राइट हाइट कहेंगे हम। सो ये दो डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहले डायमेंशन, डायमेंशन पता चल गया तो कर्व्ड एरिया जो यहाँ से लेकर इस तरह से कर्व्ड एरिया होगा 2 पाई आर एच, ठीक है। एरिया ऑफ टॉप, सो टॉप का एरिया क्योंकि ये ओपन है, दिस इज ओपन एट द टॉप, तो टॉप का एरिया 0 है, देख सकते हो आप। और बॉटम क्योंकि वो बॉटम क्लोज है, ये पानी की टंकी की तरह समझ लो, सो वो पाई आर स्क्वायर सर्कल है। देन टोटल की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, सो यू हैव गॉट 2 पाई पाई आर कॉमन एंड 2h प्लस r एज द एरिया। सो बोलो समझ में आ गया ये वाला सबको? नाउ मूविंग ऑन टू द हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बीच में एक हॉलो कटआउट्स है। सो ये हॉलो कटआउट्स होने की वजह से होल्ड ऑन, अरे आजा यार। सो ये हॉलो कटआउट कर दिया हमने। अब हॉलो कटआउट करेंगे तो दो रेडियस है, एक अंदर का छोटा r रेडियस हो गया और एक बाहर का कैपिटल R रेडियस हो गया, तो दो रेडियस है अपने पास में। इन दोनों रेडियस को हमें लेकर चलना है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया, अब कर्व्ड सरफेस एरिया भी दो है हमारे पास, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया और एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया। ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये इंटरनल है, और अब जो तुम देख रहे हो वो एक्सटर्नल है। सिंपल है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमने देखा था 2 पाई आर एच होता है, तो इंटरनल में स्मॉल r, और बाहर वाला जब हम कर रहे हैं तो 2 पाई कैपिटल आर एच। बोलो आ गया समझ में? सो दैट्स वेरी सिंपल। नाउ मूविंग ऑन टू द कोन, अगर हम कोन की बात करते हैं या ऑफ कोर्स इसमें बाकी सारे फॉर्मूलेज भी देख लेना। टॉप का एरिया इतना होगा, बॉटम का एरिया इतना होगा। टॉप में देखो अगर हम बात करते हैं तो इट विल बी लाइक अ रिंग, एक ये है गोल और एक उसके अंदर एक दूसरा गोल है। तो अब जो हमारा एरिया है वो सिर्फ इतना है, ये रिंग का एरिया। सो दिस इज व्हाट यू कैन सी, एरिया ऑफ रिंग। टॉप में भी ऐसा ही रिंग होगा, बॉटम में भी ऐसा ही रिंग होने वाला है। देन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही लेना पड़ेगा। सो इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स, ऊपर का रिंग और नीचे का रिंग दोनों ले लेना है, तो सब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी ऑफ कोर्स द एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। नाउ कमिंग टू द कोन, द कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल, ओके। नीचे का जो बॉटम है उसका एरिया देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर बिकॉज इट इज अ सर्कल। एंड देन कमिंग टू द टोटल सरफेस एरिया, तो इन दोनों को ऐड कर दो आप, टोटल सरफेस एरिया बन गया। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हाँ एक चीज याद रखना, ये जो एल है ये एल में आपका लगेगा पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल, सो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, फ्रस्ट्रम, बट इसके सम्स अब तुम्हारे सिलेबस में से निकाल दिए गए। फ्रस्ट्रम को सीधा उल्टा कर देंगे तो वो बाल्टी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, बाल्टी होती है ना पानी का बकेट वैसा। सो इसमें भी हमारे पास अगर हमको कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला निकालना है तो पाई एल आर प्लस आर, टॉप और बॉटम का, टॉप का छोटा सर्कल और बॉटम का बड़ा वाला सर्कल। देन इफ वी ऐड ऑल दिस वी गेट द टोटल सरफेस एरिया। जब वॉल्यूम की बात आती है तो इसमें फॉर्मूला ऐसा हो जाता है 1/3 पाई एच कॉमन। अभी देखो आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्ट्रम, बट एनी हाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी नाउ पार्ट ऑफ द सिलेबस। चलो कमिंग बैक, स्फीयर, स्फीयर का फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, कोई टॉप नहीं है बॉटम है ही नहीं, बात खत्म हो गई। टोटल सरफेस एरिया भी फिर यही हो जाएगा जितना था, और वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ इफ आई कट दिस स्फीयर, अगर मैं स्फीयर को लेके कट करके आधा बना दूं, बॉल ले लिया हमने, बॉल को आधा कट कर दिया, या तरबूज है समझो हमने बीच में से हाफ कट कर दिया, तो इसका एरिया जो है कर्व्ड वाला वो आधा हो जाएगा। पर अभी ये टॉप एक क्रिएट हो गया है यार इसमें, तो टॉप आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। एंड इन द सिमिलर वे अगर इसका मैं हाफ कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा वॉल्यूम, ओके।
दिस इज व्हाट इट इज। नाउ स्फीयरिकल शेल हॉलो स्फीयर, ओके ठीक है, ये भी इतना नहीं आएगा एग्जाम में। ओके लेट मी नाउ क्लियर दिस डायग्राम वंस एंड ऑल फॉर यू। अच्छा एक काम करते हैं, चलो नया डायग्राम इधर मैं आपको दे देता हूँ कंट्रोल। सो हियर यू हैव गॉट द डायग्राम वंस अगेन, जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो। फॉर्मूलाज लिखना है तो पॉज कर सकते हो आप वीडियो को और ये फॉर्मूला लिख सकते हो यहाँ से। चलो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो हम एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 21A। Here you will have the sums like height is given as 16 and the radius is 10.5 centimeter. We need to find the curved surface area, total surface area of the cylinder. You can even find the volume, तो भी आपको आ जाएगा। तो देखो CSA, TSA और वॉल्यूम करना हमें कुछ है नहीं खास, फॉर्मूला पिक करके रख देना है। तो चलो एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे ये हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की, तो देखो CSA का फॉर्मूला क्या है, 2πRH। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम तो वो कितना हो जाएगा, 2πRH प्लस 2πr², ऊपर और नीचे दोनों का हमने इसमें ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। बोलो समझ आ रहा है? तो बस यही फॉर्मूला ही आपको यूज करना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मच मोर देन दैट। सो आपका था 2π r कॉमन h प्लस r। तो हम क्लोज सिलेंडर को बात कर रहे हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या था, राइट, if I talk about the volume of the cylinder, so we know volume of the cylinder is pi r² h। वैल्यू ही डालनी है आपको, इनफिट करना है। टू पाई का जब तक कोई वैल्यू नहीं है वो 22/7 ही रहेगा। रेडियस आपका दिया हुआ है 10.5 और हाइट है 16। कैलकुलेट करके आप इसका आंसर निकालिए। देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 16 प्लस 10.5। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। और पाई के बारे में हमें याद रखना है, जब तक वो बोलेंगे नहीं हम उसका वैल्यू यही लेंगे 22/7, स्टैंडर्ड फिक्स वैल्यू। अब मैं इसको देखो कैलकुलेट करके बताता हूँ तुम्हें। तो कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 22 इंटू 105 इंटू 16 and divided by 7, so we get 10560। यूनिट्स मत भूलना, सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा वाला भी हम देख लेते हैं। 2 इंटू 22 इंटू 10.5 by 7, 66 इंटू 26.5, so ये हो जाएगा 1749 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। एक मिनट, कर्व्ड सरफेस एरिया में लगता है मैंने 10.5 की जगह 105 ले लिया था पूरा। यस, सो ये एक जीरो नहीं रहेगा वहाँ पे। ओके फाइन, डन। चलो अब वॉल्यूम का नंबर आ गया, तो वॉल्यूम भी आप इसी तरह से कर लोगे कैलकुलेट। सो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 22 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 7, सो 5544 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना है, उसी के मार्क्स कट जाते हैं ज़्यादातर बार एग्जाम में। सो हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन राइटिंग द यूनिट्स एंड द सिमिलर वे ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, आई विल बी टेकिंग यू टू द 5th क्वेश्चन नाउ। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दे हैव ऑलरेडी गिवन यू द कर्व्ड सरफेस एरिया, वो है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, ये देखो लास्ट ईयर आपने जो किया था वैसे ही है कुछ, 110 सेंटीमीटर। Find the height and the volume. You have to find the height as well as the volume of the cylinder. CSA का फॉर्मूला 2πRH, ठीक है।
अब इसकी वैल्यू तो दे दी है 4400। अच्छा देखो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है सर्कल का, तो ये देखो 2 पाई आर की वैल्यू भी दी हुई है 110। अब मुझे सिर्फ एच ही फाइंड करना है यार, तो एच कितना हो जाएगा 4400 अपॉन 110। So this 0 gone and this 4s are so 40. Height will be 40 centimeter. Isn't it easy? अभी जब बोला है वॉल्यूम फाइंड कर लो तो हमको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर एच। वी हैव गॉट ऑल द वैल्यू, आर भी है एच भी है और आप कर सकते हो। अच्छा आर कहाँ है ये बोल रहे हो, तो आर देखो ना दिया हुआ है, सरकमफेरेंस जो होता है 2 पाई आर, इसका वैल्यू अगर 110 दे दिया है तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो आर क्या बन गया भाई बताओ। हाँ 110 इंटू 7 अरे एक मिनट, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, यही ला के रख दो सीधा, अपने को क्या करना है। सो 22/7 इंटू 110 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू एच, एच कितना था अभी हमने फाइंड किया है 40। अभी देखो जो कैंसिल हो रहा है वो कर देते हैं, ये देखो 22 22 7 7 ये बिल्कुल अपने आप ही कैंसिल हो गया, तो 110 इंटू 40 अपॉन 2, ये जैसे ही कैलकुलेट करोगे वॉल्यूम मिल जाएगा। सो ये हमें पता चलना चाहिए कि हाँ सरकमफेरेंस में से आर फाइंड किया जा सकता है। ओके चलो तो ये आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। The sum of the radius of the base and the height of a solid cylinder is this। यानी r plus h दे दिया है आपको 37 मीटर। If the total surface area of the cylinder that is TSA, इसका वैल्यू भी आपको बता दिया है 1628 मीटर स्क्वायर। दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। चलो हम क्या करते हैं, पहले TSA का फॉर्मूला ही लगा देते, तो TSA का फॉर्मूला 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, तो ये फॉर्मूला हमने ले लिया इज 1628। ना लो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, एच प्लस आर इज ऑलरेडी बिन गिवन एज 37 1628। यहाँ से मैं आर फाइंड कर पाऊंगा बहुत ही आसानी से, 1628 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 37। इजंट इट ईजी? तो ये आप बड़ी आसानी से ये वाला कर लोगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है ना। एक बार ये मिल जाए तो अब आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम के फॉर्मूले की मैं बात करूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आर स्क्वायर एच से अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना रहा तो बहुत सिंपल है, पाई का वैल्यू 22/7 डाल देंगे, आर यू विल गेट इट फ्रॉम हियर। और एच कैसे मिलेगा ये बताओ, तो भाई यही आर की वैल्यू जब आप इधर इनपुट कर दोगे तो आपको एच भी मिल जाएगा। तो ये दिमाग आपको लगाना है कि कौन सा मैं पहले फाइंड करूं और उसकी वैल्यू मैं कहाँ इनपुट करूंगा तो मुझे सेकंड कौन सा आंसर मिल रहा है। ओके सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डिसाइड। बोलिए हो जाएगा ये आप लोगों से? सो दैट इज वेरी इजी, आई होप यहाँ तक तो कर ही लोगे आप। सो नाउ टुडे व्हाट यू विल बी डूइंग, आप लोग यहाँ से करके मुझे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 इतना करके सबमिट करेंगे। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक